Hello students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is popular beliefs and religious debates. Key highlights: popular trends that emerged during the medieval period, the Bhakti movement and its leading exponent, Nath Panthis, Yogis and Siddhas, the Sufi movement, teachings of Kabir and Guru Nanak. Let's start with Kabir and Guru Nanak were some of the numerous saints of the medieval period who brought about social awakening and cultural changes throughout the कंट्री। बच्चों ये माना जाता है कि कबीर और गुरु नानक जो थे वो न्यूमरस सेंट में से माने जाते हैं, वन ऑफ द सेंट्स में से माने जाते हैं जो मेडावल पीरियड में फेमस हुए थे और उन्होंने काफ़ी सोशल अवेकनिंग एंड कल्चरल चेंजेस लाए थ्रू आउट द कंट्री। Religious beliefs AD 800 to 1800. The medieval period was marked by the fusion of various cultural, religious developments and ideas along with the emergence of religious teachers who laid emphasis on the devotion of God. Sufism was founded under the leadership of gurus. Besides it, Islam took a broad beyond root to the heart of simple people. Christianity also started to make its mark in Indian subcontinent. बच्चों रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताया जाता है जो कि तब फैली हुई थी 800 से 1800 AD के बीच में। जो मेडावल पीरियड था वो मार्क किया जाता है बाय फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चर, रिलीजियस डेवलपमेंट एंड आइडियाज़ अलॉन्ग विद द इमर्जेंस ऑफ रिलीजियस टीचर्स। मतलब उस टाइम पे काफ़ी रिलीजियस टीचर्स जो थे वो भारत में हुए थे और जिन्होंने काफ़ी सारे एम्फसाइज डाला है डिवोशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान की भक्ति में उन्होंने काफ़ी जोर दिया है। जो सिफिज़म थे उन्होंने फाउंड किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ गुरुज और इस्लाम जो था उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस लिया था कहाँ पे, इंडिया में, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी जो थी वो भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी और अपने पैर जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जमा रही थी। भक्ति मूवमेंट। The term Bhakti means a devotion, the supreme entity or authority with exceptional power of knowledge, whether in the form of guru or formless entity. The early medieval period saw the rise and spread of the Bhakti movement in South India, which later spread to North India. Led in South India by two streams of popular saints called Nayanars and Alvars, the movement attracted people from all sections of society due to its emphasis on simple means and practice to attain salvation. The Nayanars worshipped Shiva and Alvars worshipped Vishnu. By the 15th century, both worshippers of Shiva and Vishnu called Shaivites and Vaishnavites respectively were popular in North India as well. The Bhakti saints spread the message of love through humans. They were follower of either the Shaguna school belief of God with a form or the Nirguna school believer of a formless God of Bhakti. They were very popular with the masses because they preached in popular languages such as Tamil, Kannada, Marathi, Hindi and Telugu. Their teachings were simple and drew inspiration from the Bhagavad Purana and the Bhagavad Gita. Bhakti movement in South India. Nayanars Alvars worshipped Shiva called Shaivites, worshipped Vishnu called Vaishnavites. तो बच्चों भक्ति मूवमेंट के बारे में जान लेते हैं। भक्ति का मतलब आपको पता ही है डिवोशन होता है और जो सुप्रीम एंटिटी और अथॉरिटी थी विद एक्सटर्नल पावर उसे नॉलेज किया जाता था वेदर इन द फॉर्म ऑफ गुरु और फॉर्मलेस एंटिटी, ठीक है। मेडावल पीरियड के अर्ली में ये माना जाता है और ये देखा भी गया है राइज एंड स्प्रेड ऑफ भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, मतलब ये साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड किया गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ा था। साउथ इंडिया में टू स्ट्रीम जो थी वो काफ़ी पॉपुलर मानी जाती थी जिनका नाम था नैनर्स एंड अलवर्स। ऐसा कहा जाता है जो नैनर्स थे वो भगवान शिव की पूजा किया करते थे और जो अलवर्स थे वो भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। और 15th सेंचुरी आते आते जो विष्णु जी की, जो शिव जी की पूजा करते थे उन्हें साइवाइट्स कहा जाता था और जो विष्णु जी की पूजा करते थे उन्हें वैष्णवाइट्स बुलाया जाता था और वो धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी क्या होने लगे, पॉपुलर होने लगे। जो भक्ति सेंट्स थे वो स्प्रेड करते थे अपने मैसेज को थ्रू नेम्स, हिम्स जो थे उनके थ्रू, मंत्रों के थ्रू वो
अपने भक्ति को स्प्रेड किया करते थे, ठीक है। और जो उनके फॉलोअर्स थे वो कहाँ थे, सगुना स्कूल्स में, जिन्हें बिलीवर ऑफ गॉड विद द फॉर्म कहा जाता था, और जो दूसरे थे उन्हें निर्गुणा स्कूल कहा जाता था, जो कि बिलीवर ऑफ फॉर्मलेस गॉड थे, मतलब उस गॉड का कोई आकार, कोई फॉर्म नहीं हुआ करता था, ठीक है। ये जो थे पॉपुलर थे विद द मासेस बिकॉज ये प्रीच करते थे इन पॉपुलर लैंग्वेजेस सच एज तमिल, कन्नड़ा, मराठी, हिंदी एंड तेलुगु, मतलब इन भाषाओं के जितने भी लोग हुआ करते थे वो इन भक्ति मूवमेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे, और इसी वजह से ये पॉपुलर भी हुए थे। जो इनकी टीचिंग्स थी वो काफ़ी सिंपल थी और वो काफ़ी इंस्पिरेशन भी लोगों को देती थी फ्रॉम भगवत पुराण एंड भगवत गीता। जो भक्ति मूवमेंट था साउथ इंडिया में वो कुछ इस तरह से थे, दो गुट डिवाइडेड थे, नयनर्स एंड अलवर्स, ठीक है। नयनर्स आपको पता ही है वो शिव जी की पूजा किया करते थे और उनके शैवाइट्स बुलाया जाता था, और जो अलवर्स थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे, इसलिए उन्हें वैष्णवाइट्स बुलाया जाता था। Now, common teachings of Bhakti saints. Bhakti teachings emphasized gaining true knowledge from a guru or teacher in order to attain salvation, devotion to one God, monotheism, equality irrespective of caste, color and creed, brotherhood, the virtue of kindness and purity of heart and mind. अब बच्चों कॉमन टीचिंग्स जो थी, जो इन भक्ति मूवमेंट के थ्रू सिखाई जाती थी और जिस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, ये एम्फेसाइज करते थे गेनिंग ऑफ ट्रू नॉलेज फ्रॉम अ गुरु, मतलब ये गुरु से, जो टीचर्स थे उनसे जो शिक्षा हमें मिलती थी उस पर ज़्यादा ही एम्फेसाइज करते थे, और ये चाहते थे गुरुकुल्स में बच्चे जाएं और वहाँ पे भक्ति सीखें। ये एक गॉड को डिवोशन करते थे, ठीक है, एक गॉड की ही ये पूजा करते थे, और ये कास्ट, कलर और क्रीड को इक्वल नहीं मानते थे, मतलब इनको ये टोटली क्या करते थे, खंडित किया करते थे। ये भाईचारे पे विश्वास किया करते थे और जितने भी वर्च्यूज से काइंडनेस, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, उसको ये ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते थे। फेमस भक्ति सेंट्स, शंकराचार्य, he was the propounder of the philosophy of Advaita, non-dualism. The greatest religious leader was born in Kerala in the 9th century. The doctrine of Advaita advocated that God is unique and that God and the created world are one. He taught that salvation was possible through devotion to God, strengthened by knowledge. It was called Janan Marg. He established 4 mathas or centers of Hindu culture in the 4 corners of India. Jyotir Matha at Badrinath in the north, Sharada Pitha at Dwarka in the west, Govardhan Matha at Puri in the east, Sringari Matha in the south. Ramanuja, he preached during the 12th century. He treated all human beings as equal. According to him, everyone could, by the worship of God, attain salvation. अब बच्चों यहाँ पे फेमस भक्ति सेंट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें पहले थे शंकराचार्य। ये माने जाते हैं प्रोपाउंडर ऑफ द फिलोसफी ऑफ अद्वैता, जिसको नॉन डुअलिज्म भी कहा जाता है। ये ग्रेटेस्ट रिलीजियस लीडर माने जाते हैं जो कि केरला में बॉर्न हुए थे 9th सेंचुरी में, ठीक है। इन्होंने अद्वैता वर्दा में डॉक्ट्रिन हासिल की थी और ये एडवोकेटेड थे जिसमें गॉड को यूनिक माना जाता है। गॉड को इस तरह से माना जाता है कि उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड को क्रिएट किया है, तो उनका जो क्रिएशन है, जो वर्ल्ड है, वो भी एक है और उसे बनाने वाला गॉड भी एक ही है। इन्होंने सैल्वेशन के बारे में पढ़ाया था, जो कि पॉसिबल है थ्रू डिवोशन टू गॉड। अगर आप पूरी तरह से गॉड को डेडिकेटेड हो जाते हो, डिवोटेड हो जाते हो, तो आप सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। इन्होंने एक जनमार्ग को क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, ठीक है, और इन्होंने 4 मथाज, जिन्हें सेंटर ऑफ हिंदू कल्चर कहा जाता है, उन्होंने इसे भी क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। अब ये 4 मथाज कौन कौन से हैं? पहले आपका ज्योतिरा मथा, जो कि इन्होंने इस्टेब्लिश किया था बद्रीनाथ, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ में है। सेकंड था शरदा पिता, जो कि द्वारका में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, जो कि वेस्ट में है। फिर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था गोवर्धन मथा, जो कि पुरी में है, ईस्ट में। फिर लास्ट इन्होंने सिंगारी मथा को इस्टेब्लिश किया था, कहाँ पे, साउथ में। रामानुजा ये जो थे, ये 12th सेंचुरी के प्रीच माने जाते हैं। इन्होंने उस टाइम पे क्या किए थे, अपनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, जो इन्होंने भक्ति आंदोलन है, वो उन्होंने स्टार्ट किया था 12th सेंचुरी में। इन्होंने सारे ह्यूमन बींग्स को एज ए इक्वल ट्रीट किया था, ठीक है, वो सबको एक ही नज़र से देखा करते थे। उनके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हर कोई जो है वो भगवान की पूजा कर सकता है और सैल्वेशन को प्राप्त कर सकता है।
Saints of Maharashtra. 13th to 17th century was period in which large number of saint poets came up with their creation in Maharashtra. Janeshwar, Namdev, Eknath and Tukaram, Sakubai and the family of Chokamela were some of the important Bhakti saints of Maharashtra. Here the regional tradition of Bhakti focused on the Vithamala, a form of Vishnu. These saints rejected all outward forms of ritualism, caste differences and emphasized on brotherhood, oneness and humanity. They believe in living the life of householder, earning their living and helping their fellow beings. ठीक है, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र के सेंट्स के बारे में। 13 से 17 सेंचुरी माना जाता है, एक पीरियड है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेंट पोएट्स जो थे वो आए थे आगे विद देयर क्रिएशन इन महाराष्ट्र। जनेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम, सकुबाई एंड द फैमिली ऑफ चोकामेला वेयर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट भक्ति सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये सारे के सारे भक्ति सेंट्स माने जाते हैं महाराष्ट्र के। यहाँ पे रीजनल ट्रेडिशन जो था भक्ति का वो फोकस था किस पे, विट्ठला पे, जो कि एक विष्णु की ही फॉर्म मानी जाती थी। ये जो सेंट्स थे ये रिजेक्ट करते थे आउटवर्ड फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म। ठीक है, और सारे कास्ट डिफरेंस को भी ये रिजेक्ट करते थे और ब्रदरहुड पे ये एम्फसाइज करते थे, वननेस पे, ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत पे ये भरोसा करते थे, एम्फसाइज भी करते थे और लोगों से भी मानने के लिए कहते थे। इनका बिलीव था इन द लिविंग लाइफ ऑफ हाउस होल्डर, मतलब घर के एक मतलब सादी ज़िंदगी, सिंपल लाइफ जीने में ये बिलीव रखा करते थे और अपनी अर्निंग, अपनी खुद की जो लिविंग है उसके लिए अर्निंग पे ये ध्यान दिया करते थे और साथ ही साथ जो उनके फॉलो बींग्स थे उनकी भी ये हेल्प करने के लिए लोगों को कहा करते थे। रविदास, ही वॉज अ प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर हु फाउंडेड द रविदास सेक्ट। He criticized Brahmanical practices and motivated his followers to challenge discrimination on the ground of caste. ठीक है, अब इसके बाद रविदासा है, ये एक प्रोमिनेंट स्पिरिचुअल लीडर माने जाते थे जिन्होंने रविदासा सेक्ट को क्या किया, फाउंड किया। ये ब्राह्मणिकल प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, और ये मोटिवेट करते थे अपने फॉलोअर्स को टू चैलेंज डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट। नेक्स्ट है शंकर देवा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यू वैष्णविति सेक्ट कॉल्ड एक शरणा नाम धर्मा इन असम। He was a great social reformer and creative genius. Madhvacharya. Madhvacharya was one of the pioneers of the Vedanta philosophy during the medieval period. He propounded the philosophy of Tattva Veda, popularly called Dvaita or dualistic school of Hindu philosophy. ठीक है, नेक्स्ट आए थे शंकर देवा जो कि फाउंडर माने जाते हैं न्यू वैष्णविति सेक्ट के, जिसे एक शरणा नाम धरना भी कहा जाता है आसाम में। ये एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे और क्रिएटिव जीनियस भी थे। उसके बाद आए माधवाचार्य। माधवाचार्य जो थे वो वन ऑफ द पायनर माने जाते हैं वेदांता फिलोसफी के ड्यूरिंग मेडाइवल पीरियड। ठीक है, इन्होंने प्रोफाइंड किया था फिलोसफी ऑफ तत्ववेदा को, पॉपुलरली जिसे द्वैता और ड्यूलिस्टिक स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी भी कहा जाता है। Now Nimbarka, he was another great pioneer of medieval Vedanta philosophy. He initiated the school of Dvaitva or duality in unity. Narasimha Mehta, Gujarat, Vallabhacharya, Vrindavan, Bhasawa, Karnataka, Dadu Dayal, Ahmedabad were some other important Bhakti saints who spread the Bhakti movement in their respective regions. Nathpanthis, Yogis and Siddhas. The Nathpanthis, Siddhacharas and Yogis rejected the traditional religions and advocated salvation through meditation on the formless ultimate reality and oneness with it by yogasana, breathing exercise and meditation. इसके बाद बच्चों आए निमकारास। ठीक है, ये दूसरे माने जाते थे ग्रेट पायनर्स ऑफ मेडाइवल वेदांता फिलोसफी। इन्होंने इनिशिएट किया था स्कूल ऑफ द्वैतवा वेदा और डुअलिटी इन यूनिटी। नरसिम्हा मेहता, वल्लभाचार्य, भासवा, दादू दयाल
ये कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स माने जाते हैं जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को क्या किया था, स्प्रेड किया था इन देयर रिस्पेक्टिव रीजन्स। उसके बाद आते हैं नथपंथीज, योगीज एंड सिद्धास। नथपंथीज, सिद्धाचार्य एंड योगीज जो थे वो क्लियरली रिजेक्ट करते थे ट्रेडिशन, रिलीजन्स एंड एडवोकेटेड सैल्वेशन को थ्रू मेडिकेशन, ठीक है, ऑन फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, और ये वननेस पे क्या करते थे, बिलीव करते थे, ठीक है, और ये ज़्यादातर योगासना पे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे, मेडिटेशन पे इनका बिलीव रहता था। नाउ केस स्टडी, सेंट कबीर। Kabir was the most ardent disciple of Saint Ramananda. He gave concrete shape to his guru's social philosophy. He was courageous enough to criticize harmful practices in both Hinduism and Islam. He had a profound influence on Guru Nanak, the founder of the Sikh religion. Many poems of Kabir can be found in the Adi Granth. He preached his thoughts in beautiful couplets called dohas. These were composed in the local dialect. His dohas are popular even today. There is no agreement among scholars over the birth of Kabir. However, they all agree that a weaver named Neeru and his wife Neema brought up the child. Kabir worked as a weaver and preached in the neighborhood of Varanasi all his life. His teachings emphasized Hindu-Muslim unity and helped to bring the two sects together. When Kabir died at Magar near Gorakhpur, there was a dispute over his mortal remains, which both the Hindu and Muslim claimed. The Hindus wanted to cremate him and the Muslim wants to bury him. It is believed that at that time Kabir himself appeared and asked them to raise the cloth which covered his body. When people raised the cloth, they found that the body had vanished and a heap of flowers had replaced it. The Hindus burned half of it and the rest were buried by the Muslim at Magar. तो बच्चों हम संत कबीर के बारे में जान लेते हैं। ये एक उत्साहित डिसिप्लिन माने जाते थे संत रामानंदा के, ठीक है। इन्होंने उनके गुरु के सोशल फिलॉसफी को एक ठोस आकार दिया था और ये काफ़ी करेजियस थे, क्रिटिसाइज करने में काफ़ी हिंदुइज्म एंड इस्लाम के जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, ठीक है। और इन्होंने गुरु नानक को भी क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था, जो कि सिख रिलीजन के फाउंडर माने जाते हैं। काफ़ी पोम्स जो हैं वो कबीर दास के द्वारा लिखी गई हैं और वो आदि ग्रंथ में भी पाई जाती हैं। इन्होंने अपने थॉट्स का प्रचार किया था इनटू ब्यूटीफुल दोहाज, ये दोहे वगैरह लिखते थे और उसमें ये अपने थॉट्स को दर्शाते थे, ठीक है। इन्होंने काफ़ी लोकल डायलेक्ट्स को भी कंपोज किया है। इनके जो दोहाज थे वो आज भी पॉपुलर माने जाते हैं। इसमें कोई आर्गुमेंट अग्रीमेंट नहीं है स्कॉलर्स के बीच में कि इनका जन्म कब हुआ था, क्योंकि इनके जन्म के बारे में किसी को भी नहीं पता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि नीरू और उनकी वाइफ नीमा को ये मिले थे, तो उन्होंने क्या किया था, इन्हें अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने ही इनका पालन पोषण किया था। कबीर जो थे वो वर्क करते थे एज ए वीवर, ठीक है, और वो प्रचार करते थे अपने नेबरहुड में ऑफ वाराणसी ऑफ ऑल हिज लाइफ। इनकी टीचिंग्स जो थी वो एम्फसाइज करती थी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे, मतलब ये हिंदू धर्म के लोग और मुस्लिम धर्म के लोगों को आपस में मिलाने की कोशिश हमेशा करते रहते थे, ठीक है। ये कहा जाता है कि जब कबीर की मृत्यु हुई थी मगर नियर गोरखपुर में, तो हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में क्या हो गया था, डिस्प्यूट हो गया था। हिंदूज़ कहते थे कि उनका जो क्रियाक्रम है वो हम अपने हिसाब से करेंगे, और आपको पता ही है कि हिंदूज़ में जो डेड बॉडी है उसे क्या किया जाता है, मरने के बाद जलाया जाता है, जबकि मुस्लिम्स में जो डेड बॉडी होती है उसे क्या किया जाता है, उन्हें दफनाया जाता है। तो मुस्लिम्स और हिंदूज़ आपस में लड़ने लगे। हिंदूज़ कहते थे कि हम कबीर की बॉडी को जलाएंगे, जबकि मुस्लिम कहा करते थे कि हम उनकी बॉडी को दफन करेंगे। तो ये कहा जाता है इनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि कबीर की जो आत्मा थी, वो सोल जो थी, वो खुद इनके पास आई थी और उन्होंने कहा था कि जो मेरी बॉडी के ऊपर कपड़ा रखा है उसे तुम उठाकर देखो। तो जब उन्होंने उठाया तो उनकी बॉडी जो थी वो वहाँ से गायब हो गई थी और वहाँ पे उन्हें कुछ फूल मिले थे। नाउ केस स्टडी गुरु नानक। गुरु नानक, the founder of the Sikh faith, was born in Talwandi, northwest of Lahore, Pakistan in 1469. He was one of the greatest saints of the Bhakti movement. Guru Nanak founded Sikhism. The word Sikhism is derived from the Guru Nanak Sanskrit Shishya, meaning disciples. The Sikhs are disciples of their 10 gurus.
Guru Nanak 1469 to 1539 was the first Guru, and the Guru Gobind Singh 1666 to 1708 the last. In 1496, he had an extraordinary spiritual experience, enlightenment, after which he travelled extensively to spread the message of love and brotherhood. Guru Nanak preached through kirtans, bhajans, devotional songs and ragas, and people flocked to listen to him. His hymns and songs were compiled in a book called the Adi Granth. He established sangats, people sitting together to listen the Guru, and pangats, people eating together in langar or free community kitchen. A few days before his death, he called a congregation of his followers and chose his disciple Angad as successor. Guru Angad compiled the Adi Granth, organized Gurumukhi, the script of the Punjabi language. The other Gurus in order were Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan Dev, Guru Har Govind, Guru Har Rai, Guru Har Krishan, Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh. The last Guru organized the Sikhs into disciplined military order of Sikh saints called Khalsa, the poor. He established the 5 symbols of Sikhism: Kanga, comb, kesh, long hair, kada, iron bracelet, कच्छा अंडरवेयर एंड कृपाण स्वॉर्ड और ड्रैगर। अब बच्चों हम गुरु नानक जी के बारे में जान लेते हैं। ये तो सब आपको पता ही हो कि गुरु नानक जी जो थे वो सिख कम्युनिटी के फाउंडर थे, ठीक है। इन्होंने सिख फेथ को क्या किया था, फाउंड किया था, जो कि ये कहाँ पे जन्मे थे, ये तलवाड़ी नॉर्थ वेस्ट में जन्मे थे पाकिस्तान के 1469 में, ठीक है। और ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंट माने जाते हैं ऑफ भक्ति मूवमेंट। गुरु नानक जो थे उन्होंने सिखिज्म का फाउंड किया था, ठीक है। और ये माना जाता है सिक्स जो है वो डिराइव हुआ है गुरु नानक के संस्कृत बुक से जिसका नाम है शिष्या। इसका मतलब होता है डिसिपल्स। जो सिक्स थे वो डिसिपल्स थे ऑफ देयर 10 गुरुज, ठीक है। गुरु नानक जो थे वो फर्स्ट गुरु माने जाते हैं और जो लास्ट गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। 1496 में उन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किया था, आफ्टर विच ही ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड, ठीक है। ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था इसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे अपने मैसेजेस ऑफ लव को एंड ब्रदरहुड मतलब भाईचारे के जो मैसेज है उसे उन्होंने बढ़ाया, लोगों तक फैलाया। गुरु नानक जो थे वो प्रचार करते थे थ्रू कीर्तन्स, भजन्स, ठीक है, और रागास, और जो लोग थे वो इकट्ठा होकर इनके भजन्स को सुना करते थे और इनके सॉन्ग्स को कंपाइल किया जाता था इन अ बुक जिसे आदि ग्रंथ कहा जाता है। मतलब आदि ग्रंथ में भी इनके जो भजन्स हैं, इनके कीर्तन्स हैं, उनका आपको झलक देखने को मिलेगी, ठीक है। लोग जो थे वो बैठ करके इनके भजन सुना करते थे, ठीक है, इसलिए उन्हें संगत कहा जाता था। और इन्होंने लंगर का भी क्या किया था, प्रचार किया था, क्योंकि लंगर में काफ़ी लोगों को फ्री में खाना ये लोग खिलाते थे। इनकी डेथ के कुछ टाइम बाद इनको कॉन्ग्रेशन कहा जाता था और इनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इनके डिसिपल अंगद को एज ए सक्सेसर मतलब इनकी आगे की पीढ़ी को चलाने के लिए, इनके जो धर्म को उसको प्रचार करने के लिए अंगद को चुन लिया था। फिर अंगद ने कंपाइल किया आदि ग्रंथ को, जिसमें गुरुमुखी को ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट मानी जाती है, ठीक है। और उनके जो गुरुज थे, जो बाकी के गुरुज थे, वो अब तक इस धर्म को आगे बढ़ाते आ रहे हैं। नाउ टीचिंग ऑफ कबीर, टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है या इनके क्या क्या फीचर्स हुआ करते थे ये हम जान लेते हैं। एम्फोसाइज दैट देयर इज वन गॉड, सम कॉल्ड इट राम एंड सम रहीम, बिलीव्ड इन मोनोथिज्म और वन गॉड, एम्फोसाइज सुमरन, टोटल डिवोशन टू गॉड, taught that God lives not in temples or mosques but in the heart of every individual, conceived God a formless Nirankara and called him by various names such as Ram, Rahim, Hari and Govind, promoted brotherhood among people, persuaded his followers to reject the caste system and inculcate the virtues of humility, charity, forgiveness and truthfulness, rejected the caste system, discarded idolatry, the worship of image, discarded discrimination based on religion, reaffirmed the ethical ideas of human equality, saying there was no distinction between human beings. He preached to all without any distinction of caste, creed or color, ridiculed all evil practices such as sati, the parda system and the superiority of the
Brahmins, condemned superstitions and considered them a mark of cultural backwardness. He educated people to distinguish superstitions from religious values. तो बच्चों इनके जो फीचर्स थे धर्म के वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है। जो कबीर थे वो एम्फोसाइज करते थे एक गॉड पे, और ये इन्हें राम एंड कभी कभी रहीम भी बुलाते थे। जो गुरु नानक थे वो बिलीव करते थे मोनोथिज्म, या फिर वो भी एक गॉड पे ही बिलीव किया करते थे, और वो एम्फोसाइज करते थे सुमिरन पे, मतलब टोटल डिवोशन टू गॉड। रहीम जो थे वो टॉट करते थे गॉड लिव्स के बारे में, नॉट इन टेम्पल्स, मतलब वो कहते थे कि भगवान जो है वो टेम्पल में या मॉस्क में नहीं है, जबकि वो आपके खुद के अंदर है, ठीक है। तो आप उन्हें अपने अंदर ढूंढो। जो गुरु नानक थे वो गॉड को कंसीव करते थे एज ए फॉर्मलेस, मतलब निरंकारा, गॉड का कोई क्या है आकार नहीं है, ठीक है। तो आप उन्हें वेरियस नाम से बुला सकते हो, जैसे कि राम, रहीम, हरि एंड गोविंद। कबीर जो थे वो ब्रदरहुड पे प्रमोट करते थे, मतलब वो भाईचारे पे बिलीव करते थे। तो इसी तरह से जो गुरु नानक थे वो भी यही कहते थे कि भाई हम ह्यूमिलिटी को आप हटाओ, चैरिटी, फॉरगिवनेस एंड ट्रूथफुलनेस को आप ज़्यादा प्रमोट करो। कबीर जो थे वो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट करते थे, और इसी तरह से जो गुरु नानक थे वो भी डिस्कार्ड करते थे आइडोलेटरी को, जो कि किसकी वर्शिप मानी जाती है, इमेजेस की वर्शिप मानी जाती है। कबीर जो थे वो डिस्कार्ड करते थे डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब धर्म के बेसिस पे जो छुआछूत हुआ करती थी या जो धर्म निरपेक्षता हुआ करती थी उसके ये खिलाफ थे। गुरु नानक भी ह्यूमन इक्वालिटी पे ही बिलीव करते थे, और ये कहते थे कि कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, मतलब सब क्या है, एक बराबर है। जो कबीर थे वो सती प्रथा, पर्दा प्रथा के खिलाफ थे, ठीक है। और जो ब्राह्मण की सुपीरियरिटी के भी ये खिलाफ मानते थे। वो ये कहता था कि ब्राह्मण, शूद्र ये सब क्या है, एक बराबर ही है, इन्हें इक्वल दर्जा देना चाहिए समाज में। तो इसी तरह से गुरु नानक भी जो थे वो भी सारे सुपरस्टिशंस को खंडित किया करते थे, और वो कल्चर बैकवर्डनेस को भी खंडित किया करते थे, ठीक है। और वो पीपल्स को एजुकेट किया करते थे टू डिस्टिंग्विश सुपरस्टिशंस फ्रॉम रिलीजियस वैल्यूज़ को। Now, new religious development in North India. The period after 13th century was marked by a new wave of Bhakti movement in North India. It was also the time when new professionals like peasants, traders, craftsmen, laborers and others were emerging. These new professional classes were willing to listen to the teaching and ideas of Bhakti saints, and thus helped in its widespread appeal. Some of the well-known saints who propagated Bhakti movement in North India were Chaitanya, Saint Ramananda, तुलसीदास, मीराबाई एंड अदर। तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कि नॉर्थ इंडिया में न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट कौन कौन से हुए थे। ये माना जाता है 13th सेंचुरी के बाद का जो पीरियड है वो भक्ति आंदोलन में एक नया वेव लेके, नई लहर लेके आया था, ठीक है। और ये एक ऐसा टाइम भी माना जाता है जब न्यू प्रोफेशनल जैसे कि किसान जो थे, ट्रेडर्स जो थे, क्राफ्टमैन, लेबरर्स एंड अदर काफ़ी साथ में आगे आए थे, मतलब ये सब के सब साथ में इमर्ज होकर आगे आए थे। न्यू प्रोफेशनल क्लासेस जो थी वो टीचिंग में बिलीव करती थी और आइडल ऑफ भक्ति में बिलीव करती थी, और ये अपनी अपील्स को काफ़ी क्या करते थे, वाइड स्प्रेड करते थे। कुछ वेल नोन सेंट्स के नाम भी इसमें आगे हैं जो कि न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट में उनका हाथ माना जाता है, जैसे कि चैतन्य है, सेंट रामानंदा है, तुलसीदास है, मीराबाई है एंड अदर हैं। संत रामानंदा के बारे में हम जान लेते हैं। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ रामा। ही अपोज्ड डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स। He was an exponent of Hindu-Muslim unity, universal brotherhood, tolerance and complete surrender to one God. Among his disciples were Kabir, Ravidas, Dhanna and Pipa. He was the first Bhakti saint to preach in Hindi. Chaitanya. He was a Bhakti saint who popularized the Bhakti movement in Bengal, Assam and Odisha. He was a devotee of Krishna and emphasized universal love as the first step towards God. He believed that one can experience God's existence through love and devotion, song and dance. Kirtanas, devotional songs sung in chorus, accompanied by instrumental music, were a feature of his congregations. तो बच्चों सबसे पहले संत रामानंदा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वर्शिपर माने जाते थे राम के, ठीक है। और ये अपोज करते थे, मतलब ये खिलाफ थे डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और सेक्स के।
ठीक है। ये एक्सपोनेंट माने जाते हैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी के और यूनिवर्सल ब्रदरहुड के, ठीक है। और ये सरेंडर करने को कहते थे गॉड को, मतलब अपने आप को टोटली गॉड को क्या कर दो आप, कंप्लीटली सरेंडर कर दो। ये इनके जो डिसिपल्स थे वो थे कबीर, रविदास, धन्ना एंड पीपा, ठीक है। और ये फर्स्ट भक्ति सेंट माने जाते थे जिन्होंने हिंदी का प्रचार किया। तो बच्चों चैतन्य जो हैं भक्ति संत माने जाते हैं जो कि पॉपुलर हुए थे बंगाल, आसाम एंड उड़ीसा के भक्ति मूवमेंट्स में, ठीक है। वो डिवोटी माने जाते हैं कृष्णा के, जो एम्फसाइज करते हैं यूनिवर्सल लव को एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गॉड। इनका मानना था कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हो गॉड के एग्जिस्टेंस को थ्रू लव एंड डिवोशन, सॉन्ग एंड डांस के थ्रू, ठीक है। कीर्तन्स को ये बढ़ावा देते थे, कीर्तन्स को ये गान के और इन्हें कोरस में गाते थे अकम्पनीड बाय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जो कि फीचर थे उनके कॉन्ग्रेशन के। तुलसीदास, he was a reformer and philosopher who was well known for his devotion to Lord Rama. He wrote the Ramcharitra Manasa. According to him, Lord is to be approached by faith, bhakti and single-minded devotion. Mirabai, she was only female figure of the Bhakti movement. She was married into the ruling family of Mewar. She was an ardent devotee of Krishna. She composed various devotional songs known as the Meera's Bhajans, which are popular even today. Mirabai spent most of her time in the company of the devotee of Krishna. बच्चों नेक्स्ट इसमें आते हैं तुलसीदास, ठीक है। तुलसीदास भी रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर माने जाते हैं जो कि वेल नोन थे अपने डिवोशन को टू लॉर्ड रामा, मतलब ये रामा के काफ़ी अच्छे डिवोटी माने जाते थे और इन्होंने रामचरितमानस भी लिखी है। इनके अकॉर्डिंग जो लॉर्ड है वो आप फेथ एंड भक्ति से ही पहुंच सकते हो, मतलब भगवान तक आप भक्ति से सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ ही पहुंच सकते हो। नेक्स्ट थी मीराबाई, ये एक लौती फीमेल फिगर थी भक्ति मूवमेंट की और ये मैरिड हुई थी, किसके साथ, उनकी शादी किसके साथ हुई थी, फैमिली ऑफ मेवाड़ में इनकी शादी हुई थी और ये कृष्णा जी की एक डिवोटी भक्त मानी जाती हैं। इन्होंने काफ़ी सारे डिवोशनल सॉन्ग्स लिखे हैं जिन्हें मीरा के भजन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और जो आज भी पॉपुलर हैं। ये काफ़ी सारा टाइम जो है वो कृष्ण की भक्ति में ही लगी रहती थी, मतलब उनकी भक्ति में ही ज़्यादातर टाइम जो था अपना स्पेंड किया करती थी। The Sufi movement, the arrival of Islam in India marked a turning point in history as changes and innovations occurred in the field of art, architecture, music, history, literature, and social relations. Indian society soon became a mixture of people belonging to different regions with varied culture practices. Along with these changes, social practices which had their origins in West Asia, it was also responsible for the rise of Sufism. A large number of Sufi saints migrated to India after the establishment of the Turkish Empire here. Sufism is a common term given to Islamic mysticism, the belief that one can become united with God through prayers and meditation and by living a simple and strict life. The Sufis were inspired by teachings from the Quran. They organized themselves into silsila or religious orders. Each Sufi order lived in a khanda or hermitage. The main religious orders were Chishti, Surawardi and Naqshbandi. Each was headed by a teacher or peer and had several disciples or murids. Some of the famous Sufi saints were Khwaja Muinuddin Chishti, Baba Farid, Nizamuddin Aulia and Sheikh Salim Chishti. The Sufi saints were respected by Hindus and Muslim alike. ठीक है, इसके बाद सूफी मूवमेंट जो था वो इंडिया में, भारत में आया, ठीक है। किसके साथ आया, ये इस्लाम्स के साथ आया और ये इस्लाम्स के मूवमेंट के साथ साथ एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे जो हमारे धार्मिक जितने भी चेंजेस थे, धार्मिक कल्चरल जितने भी चेंजेस थे, सोल्जर चेंजेस थे, वो सब इन्हीं की वजह से ही हुए थे इस्लाम के इंडिया आने के बाद। इंडियन सोसाइटी जो थी वो मिक्सचर बन चुकी थी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स विद वेरिड कल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब काफ़ी सारे लोग थे जो हिंदुज़म को मानते थे, काफ़ी सारे लोग जो थे वो सिखिज़म को मानते थे, काफ़ी सारे लोग जो थे वो इस्लाम धर्म को मानते थे, ठीक है। अलॉन्ग विद दीज चेंजेस सोशल प्रैक्टिस जो थी वो अपने ओरिजिन्स
जो वेस्ट एशिया से आए थे, इट वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ सूफिज्म। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सूफिज्म जो थे, सूफी सेंट्स जो थे वो इंडिया आए थे माइग्रेट होकर के आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द तुर्किश एम्पायर हेयर। ठीक है, मतलब तुर्किश एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट के बाद काफ़ी सारे सूफी सेंट्स जो थे वो भारत में आए थे। सूफीज़म एक कॉमन टर्म है जिसे इस्लामिक मिस्टिज्म कहा जाता है और इसके बिलीव है कि आप भगवान को पा सकते हो थ्रू प्रेयर्स एंड मेडिटेशन बाय लिविंग सिंपल एंड स्ट्रिक्ट लाइफ। ठीक है, अगर आपकी लाइफ सिंपल नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है और अगर आप मेडिटेशन या प्रेयर नहीं करते हैं तो आप भगवान को नहीं पा सकते। तो बच्चों, सूफीज जो थे वो इंस्पायर्ड थे टीचिंग फ्रॉम द कुरान, कुरान की टीचिंग से इंस्पायर्ड हुआ करते थे। ठीक है, और ये अपने आप को ऑर्गेनाइज किया करते थे इनटू सिलसिलास और रिलीजियस ऑर्डर्स। ठीक है, हर सूफी जो था वो लिव मतलब जीता था खंडा और हेरिटेज में। ठीक है, और जो इनका मेन रिलीजियस था वो माना जाता था चिश्ती, सुहरावादी एंड नक्शबंदी के ऊपर। हर किसी को हेड किया जाता था बाय अ टीचर और पीर, जिसे टीचर भी कहा जाता था और पीर भी कहा जाता था, और जिसके सेवरल डिसिपल्स मतलब उनके मुरीद्स माने जाते थे, उनके स्टूडेंट्स माने जाते थे। कुछ फेमस सूफी सेंट्स जो थे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन थे, चिश्ती थे, बाबा फरीद थे, निज़ामुद्दीन औलिया एंड शेख सलीम चिश्ती। सूफी सेंट्स जो थे वो रिस्पेक्ट किए जाते थे बाय हिंदू एंड मुस्लिम, मतलब दोनों ही धर्म के थ्रू इन्हें पूजा जाता था, रिस्पेक्ट किया जाता था। Now Muinuddin Chishti, Khwaja Muinuddin Chishti came to India in AD 1192 after living in Lahore and Delhi for some time. He shifted to Ajmer. His fame spread far and wide. He died in AD 1235. His mausoleum or dargah at Ajmer is a place of pilgrimage where thousands come every year from all over the world. तो बच्चों, इसमें हम बात करेंगे मुइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, जो कि इंडिया आए थे 1192 में। ठीक है, और ये पहले कहाँ रहते थे? लाहौर में रहते थे, उसके बाद ये दिल्ली रहे थे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद ये अजमेर शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, इन्होंने अपने फेम को काफ़ी बढ़ाया, काफ़ी ज़्यादा फैलाया और 1235 में ये इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इनकी जो दरगाह है वो अभी भी अजमेर में, अजमेर शरीफ में मिलती है और वहाँ पे काफ़ी सारे जो यात्री हैं, काफ़ी सारे जो पिलग्रिमेज हैं वो जाते हैं वहाँ पे हर साल। बाबा फरीद, बाबा शेख फरीद was one of the founding fathers of the Chishti Sufi order. He became a disciple of Khwaja Qutbuddin Bakhtiyar Kaki, who was a disciple of Sheikh Muinuddin Chishti. He preached in Haryana and Punjab. He insisted that only way to love God was to love the people he had created. Some of his verses are included in the Adi Granth and his followers included both Hindus and Muslims. तो बच्चों, बाबा शेख फरीद जो थे वो फाउंडिंग फादर माने जाते हैं चिश्ती सूफी ऑर्डर के। ये डिसिपल बने थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के और ये डिसिपल माने जाते थे शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के भी। ठीक है, इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार हरियाणा एंड पंजाब में किया और ये मानते थे कि अगर आप भगवान को प्यार करना चाहते हो तो आप भगवान की बनाई हुई हर एक चीज़ से भी प्यार करो। उनके कुछ वर्सेस जो हैं वो आदि ग्रंथ में देखने को आपको मिलते हैं और इनके जो फॉलोअर्स थे ये हिंदू भी और मुस्लिम्स भी दोनों थे। निज़ामुद्दीन औलिया एंड सलीम चिश्ती, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एंड नसरुद्दीन चिराग ऑफ दिल्ली एंड सलीम चिश्ती सिक्की वर द अदर सूफी सेंट्स ऑफ फेम. They preached that Ishwar and Allah are two different names of the same superior being. Nizamuddin Aulia lived in Delhi during the reign of Alauddin Khilji and preached religious tolerance and love for humanity. Common teaching of Sufi saints. God is one. Different religions are different paths to the same God. Therefore, all religions should be respected. God is almighty and all men are his children. All human beings are equal and one must love all human beings. Rituals are not necessary to reach God. He can be reached through love and devotion. Music is one of the ways to reach God. तो बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं निज़ामुद्दीन औलिया एंड सलीम चिश्ती के बारे में। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एंड नसरुद्दीन चिराग जो थे वो दिल्ली में रहते थे और काफ़ी उस टाइम पे ये फेमस सेंट, सूफी सेंट माने जाते थे। ये प्रचार करते थे ईश्वर एंड अल्लाह जो है वो टू डिफरेंट नेम्स है ऑफ सेम सुपीरियर, मतलब ये नाम अलग है लेकिन ये एक ही सुपीरियर बीइंग के, एक ही
जो अल्लाह है उसी का नाम माने जाते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो दिल्ली में रहते थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, मतलब ये उनके शासनकाल में रहा करते थे और ये रिलीजियस टॉलरेंस और लव फॉर ह्यूमैनिटी को बढ़ाते थे। कॉमन टीचिंग जो है सूफी सेंस के वो कुछ इस तरह से हैं। गॉड को ये एक ही मानते थे, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स जो है डिफरेंट पाथ के वो सेम ही गॉड को मानना चाहते हैं, मतलब ये कहते थे कि सेम ही गॉड को इन्हें मानना चाहिए। देयरफॉर ऑल रिलीजन्स शुड बी रिस्पेक्टेड, मतलब इनका कहना था कि सारे के सारे धर्मों का हमें क्या करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। गॉड जो है वो अलमाइटी है और सारे के सारे जो मैन हैं वो उसके क्या हैं, चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। ऑल ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इक्वल है और सारे के सारे ह्यूमन बींग्स को हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। रिचुअल जो है वो नेसेसरी नहीं है भगवान तक पहुंचने के लिए, ठीक है। उनकी तरफ आप लव एंड डिवोशन के थ्रू भी पहुंच सकते हो। और म्यूज़िक एक ऐसा तरीका है जिससे आप गॉड की तरफ पहुंच सकते हो, मतलब सॉन्ग्स गा के, भजन्स गा के, कीर्तन्स करके आप भगवान की तरफ पहुंच सकते हो। Impacts of the Bhakti and Sufi movements. As a result of Bhakti and Sufi movements, a new form of worship emerged which inspired religious reforms. It gave a ray of hope to the downtrodden because it opposed the rigid caste system. It also led to the growth of local languages because the Bhakti and Sufi saints preached in the language of the common man. Rulers such as Akbar were influenced by it and followed a policy of religious टॉलरेंस। अब भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये हम जान लेते हैं। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट के रिजल्ट में क्या हुआ था, एक न्यू फॉर्म ऑफ वर्शिप जो थी इमर्ज हुई थी विच इंस्पायर्ड रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसने लोगों को क्या किया था, काफ़ी इंस्पायर किया था, ठीक है। उन्होंने लोगों को एक रे दी थी, किसकी, होप की, उम्मीद जगाई थी टूवर्ड्स गॉड, ठीक है। और इन्होंने जितने भी कास्ट सिस्टम थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनके खिलाफ लोगों को जागरूक करवाया था, ठीक है। और जो लोकल लैंग्वेजेस है उसके ग्रोथ में इन्होंने हेल्प की थी। और भक्ति एंड सूफी सेंट्स जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपने सॉन्ग्स, अपने भजन, अपने सूफी जो गाने थे वो लिखा करते थे, तो वो कॉमन मैंस को उसी के थ्रू समझाया करते थे। जो रूलर्स थे जैसे कि अकबर थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे एंड उन्होंने काफ़ी पॉलिसीज़ जो थी रिलीजियस टॉलरेंस की वो भी फॉलो की थी। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।